Morning, children. Welcome back in your history class. I hope you all are fit and fine. Children, please, before starting today's lecture, I would like to tell you one thing that kindly go through the video and please make your notes in your fair copy and also read your book and read your book also, and please note down the points whatever I have made for you. And because I'm explaining the lecture, I'm explaining the topic from the notes which I have made for you. So kindly please note down the if you want to take the points from my notes, so kindly go through the video and see the video and listen the video carefully. So children, before going then on the next topic, let's have a quick revision of the points whatever we have discussed earlier in our lecture. Children, in our earlier lecture, we have discussed about the limits of the civil disobedience movement, and in that reference, we have discussed about the another social group of Indian society that was called untouchables, and around 1930s they called themselves as Dalits, and whom the Gandhiji was called Harijans, means the children of God. And also we have discussed about the upliftments made their upliftments made by Gandhiji, and how he stood for their rights and upliftments. And along with these points, we have also discussed about the upliftments made by Dr. Bhimrao Ambedkar, and also we have discussed about the Pune Pact signed between Dr. Bhimrao Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932. तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में पढ़ा था, और उसके संदर्भ में हमने पढ़ा था कि भारतीय समाज में एक अन्य सामाजिक समूह था जिसको अछूत के नाम से जाना जाता था, और लगभग 1930s के दशक में, यानी 1930 के दशक में वे अपने आप को दलित कहलवाने लगे थे, और गांधी जी ने भी इनको नाम दिया था हरिजन का, जिसको कहते हैं ईश्वर के बच्चे। तो हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि गांधी जी ने किस तरीके से इनके सुधार के लिए कदम उठाए, उन्होंने क्या किया इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, और किस तरीके से वे इनके अधिकारों के लिए वो खड़े रहे। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किस तरीके का योगदान उनके अपलिफ्टमेंट में किया, और उनके सुधार में उनकी भूमिका क्या थी। हमने पूना पैक्ट समझौते के बारे में भी पढ़ा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था सन 1932 में। So children, we have discussed all these points in our earlier lecture, and in today's lecture we are going to study about the issues around between the Congress leaders and the Muslim League. Also we will study about the problems prevail among them, and also we will study about the solution of their problems, and also how they became aware about the movement, and how they how they entered into a compromise pact. And also we will discuss about their steps, about their thoughts over the movement, over the freedom struggles. And also along with these points, we will also discuss about the Quit India movement, and Quit India movement in the 1942 occurred in 1942, or you can say that launched by Gandhi ji in 1942. तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कॉल ऑफ, यानी उसकी गति धीमी पड़ने के बाद किस तरीके से जो है समुदायों के बीच में एक मतभेद सा पैदा होने लगा था, अनबन सी होने लगी थी, खटास सी होने लगी थी, और सभी जो समुदाय थे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, या फिर दलित वर्ग हो, ये सभी समुदाय जो थे वो अपने अपने जो है तरीके से अपने अपने पार्टीज़ को बनाने लगे, और अपनी अपनी रैलीज़, अपनी अपनी प्रदर्शन करने लगे, और अपनी अपनी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस करने लगे थे। तो हम आज के इसमें डिस्कशन करेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने किस तरीके से जो है अपने प्रॉब्लम्स का हल निकाला, अपनी समस्याओं का हल निकाला, और किस तरीके से उन्होंने आपस में समझौते भी किए, कुछ हद तक समझौते किए ताकि उनके आपसी मतभेद को हटाया जा सके, या आपसी मतभेद वो आपस में मिटा सकें। और इस तरीके से हम जो है इस बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था सन 1942 में। और इसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि ये जो है वो भारत छोड़ो
छोड़ो आंदोलन बाद में क्यों जाके असफल हुआ, उसके क्या कारण थे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टुडेज टॉपिक। तो बच्चों आज हम अपने शीर्षक के बारे में अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। We have discussed कि how the some Muslim political organizations were showing little interest in response to their civil disobedience movement, and because civil disobedience movement, and also their relation with Congress became worse day by day. But after some times, the Congress and Congress leaders and Muslim League in 1927, from 1927, they made some compromise efforts to solve their problems. And then what were their efforts? मतलब कहने का बच्चों ये है कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय संगठन थे जो कि मतलब कांग्रेस से जो है वो पृथक या अलग हो रहे थे, और सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी रुचि कम होती जा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद लगभग 1927 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक समझौता भी करने लगे ताकि वो अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। तो वो प्रयत्न क्या थे उनके? लेट्स डिस्कस इन पॉइंट्स। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged or established। यानी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लग रहा था कि अब एकता स्थापित हो जाएगी, तो फिर जब इनको ऐसा लग रहा था कि एकता स्थापित हो जाएगी, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? What was the basic problem of their controversies between them? उनके बीच की जो controversies थी, मतभेद थी, उसकी problem क्या थी? The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected। यानी उनकी सबसे बड़ा जो बेसिक जो सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम थी वो था, सबसे महत्वपूर्ण मतभेद जो था वो भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। यानी जो इलेक्शन बाद में होंगे आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, तो जो है विधानसभा में कौन सा समुदाय या कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कौन लीडर उसका कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा। नाउ व्हाट वेयर द इश्यूज? ये डिफरेंसेस थे, तो इश्यूज क्या थे? Muhammad Ali Jinnah, one of the leader of Muslim League, was ready to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seat in Central Assembly and representation in the Muslim dominated areas, that were Bengal and Punjab, according to the proportion to its population। यानी जो है मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leader of Muslim League, what he demanded, उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने कहा ये कि मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और बंगाल तथा पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे। ना चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सारे जो समुदाय हैं, अलग अलग जो समुदाय हैं, वो पृथक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। यानी उनको अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की चाहिए, उनकी मांग थी कि उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो। सबसे पहले दलित वर्ग ने मांगा, फिर उसके बाद अब नाउ मुस्लिम्स वे डिमांडिंग। तो ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो हो रही थी, इसका जो प्रभाव था वो ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है देश के जो जिस समुदाय थे उसमें एक टकराव, एक खटाव सा बढ़ता जा रहा था, और एक एकता जो है वो टूटती जा रही थी। तो ये राजनीतिक जो नेता जो थे वो प्रत्येक यानी अलग निर्वाचिका के सवाल पर क्यों अड़े हुए थे? तो सब अपनी अपनी तरह से वो अलग अलग क्षेत्र मांग रहे थे। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? वी विल डिस्कस कि वाई क्यों राजनीतिक नेता जो है वो अलग जो है वो निर्वाचिका क्षेत्र मांग रहे थे, अपने अपने अलग क्षेत्र मांग रहे थे इलेक्शन के लिए। So what next point is that the investigations over this matter continued, but in all parties conference in 1928, all the hopes of resolving the issues disappeared.
व्हेन हाउ इट डिसअपियर्ड, यानी कुछ उम्मीद बंधी थी 1928 के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो उम्मीद जो है तब टूट गई, जो वो आशा ख़त्म हो गई। कब? व्हेन मिस्टर M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़। कहने का मतलब ये है कि जो इस मुद्दे पर जो अभी बहस चली रही थी कि किस तरीके से अलग निर्वाचिका क्षेत्र जो है वो अलग अलग समुदाय मांग रहे थे, इस पे वो बहस चल रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में, 1928 में जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर के इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने खुलेआम निंदा की। और फिर क्या हुआ? इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। यानी उनके क्रिटिसिज्म से, उनको क्रिटिसाइज़ करने की वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास नहीं हो सकते हैं, और वो असहमत थे। तो जो कॉम्प्रोमाइज़, जो थोड़ा बहुत सा जो चीज़ें हो रही थी, वो उसकी संभावनाएं जो हैं वो समाप्त हो गई। सो व्हेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, देयर वाज दिस एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस between communities, and that is why a large section of the Muslim could not respond to the call for a united struggle। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम ये बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे सामने उठता है ना कि ये जो राजनीतिक नेता थे वो अलग निर्वाचिका क्षेत्र की बात क्यों कर रहे थे, क्यों सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात कर रहे थे, उनको क्यों अलग अलग क्षेत्र चाहिए था फॉर द इलेक्शन। तो ये इसका सबसे बड़ी चीज़ थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न था अंग्रेज़ों की नीति, फूट डालने वाली नीति। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रख किया, प्रावधान रख दिया। ऐसा करने के पीछे उनका एक ही मोटिव था, एक ही जो है वो उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि भारतीयों में सांप्रदायिक यानी कम्युनल आधार पर फूट डालना, उनको सांप्रदायिक तौर पर उन पर फूट डालना, उन पर जो है वो इनकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करना। और अंग्रेज़ अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने भी पढ़ा कि दलित वर्ग भी जो है वो अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहा था, और जो है वो एंड हिंदूज़ एंड मुस्लिम ऑल्सो केम फॉरवर्ड फॉर दिस रीज़न। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस जो थी, और चूँकि इसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पे जब जो था, भारतीय आपस में क्या हो गए थे, बट गए थे। और कांग्रेस जो है इस तरह की प्रणाली का विरोध कर रही थी। यानी ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही थी, इस तरह के सिस्टम के खिलाफ जो है कांग्रेस जो है कांग्रेस वॉज अपोजिंग। और इस पहले अंग्रेज़ों ने न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, बल्कि बाद में उसने दलित वर्ग के हिंदुओं के लिए भी जो है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, जिससे क्या हुआ और जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। लेकिन जैसे दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की। उनको कहने का मतलब था कि जो है वो दलितों का सोशल जस्टिस, दलितों को जो सोशल इनजस्टिस जो है, यानी सामाजिक अपंगता तभी दूर हो सकती है जब उनको राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण हो, यानी उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो, तभी उनकी जो सोशल इनजस्टिस जो है वो दूर हो सकती है। इसी तरीके से मुसलमानों को केंद्र सभा की मुस्लिम लीग ने भी उन्होंने भी अलग क्षेत्र मांग की। उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए, और मुस्लिम प्रांतों में जैसे अभी हमने वी हैव डिस्कस राइट नाउ कि जैसे बंगाल और जो है शहर था, वहाँ पर जो मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इस तरह की तो वे मुसलमानों के लिए जो है वो पृथक तो अगर जो है वो ये ब्रिटिश उनकी ये बात मान लेते हैं तो मुसलमान जो है उन्हें अलग निर्वाचिका क्षेत्र की मांग को ख़त्म कर देगा। तो बच्चों, इस तरह से जो है ना कि ये राष्ट्रीय जो नेता थे, राष्ट्रीय जो दल जो थे, वो कहीं ना कहीं जो है ये आपस में बट गए थे। और इससे ये बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो ये पृथक अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पे भारतीय में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस जो है वो इसके विरोध था, जबकि दलित और मुस्लिम वर्ग जो है इसके पक्ष में थे। गांधी जी का ये विचार था कि पृथक निर्वाचन पद्धति, यानी जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात हो रही है, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को में जो है वो कटुता यानी उसमें खटास उत्पन्न हो जाएगी और उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, और इसीलिए वो इसके विरोध में। सो दिस इज़ योर पॉइंट। नाउ
लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो शुरू हुआ था 1942 में। Now children, we have discussed about many movements. We have discussed about the movements like non-cooperation movement, satyagrah movement. We have also discussed about the civil disobedience movement, and we have also discussed about the participation of different social groups in all the movements launched in all parts of the India. Now, one movement, that is the Quit India movement, was another movement started by Gandhiji in 1942. Though British government had foiled national movement, it had realized that the seeds were sown and at any cost the movements would not be stopped. यानी कहने का मतलब ये है कि बीज जो है क्रांति की बोई जा चुकी थी, अब जो है किसी भी हालत में जो है क्रांति या रिवॉल्यूशन या आंदोलन नहीं रुकेगा. So children, let's discuss about the movement, that is the Quit India movement, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो गांधी जी द्वारा शुरू हुआ था 1942 में. Now गांधी जी launched Quit India movement in August 1942 because of two reasons. Because of the reasons, the first is failure of the Cripps mission, यानी क्रिप्स मिशन की असफलता. दूसरा था the effects of Second World War created widespread discontent in India, यानी भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की वजह से भारत के लोगों में असंतुष्टि फैलना. Now what was the Cripps mission? Before going further, before knowing Quit India movement, let's clear the topic, that is the Cripps mission. हम पहले क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन है क्या. Now क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नाम था उनका, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, जो लेबर पार्टी से रिलेटेड थे, संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में भारत आया था. यानी सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स जो थे वो लेबर पार्टी के लीडर थे या अध्यक्ष थे. उनकी अध्यक्षता में, उनकी मेंबरशिप में, उनकी लीडरशिप में जो है, उनके नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में. और जो है उसका मिशन था कि वो किस लिए आया था कि सरकार द्वारा यानी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था. यानी वो द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग चाह रहा था. इस वजह से क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैटफोर्ड क्रिप्स. यानी द क्रिप्स मिशन वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट इन लेट मार्च 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर व्हाट, टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड विच केम इन मार्च ऑन 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ whom, Stratford Cripps, and who was related to the Labour Party of Britain. अब क्रिप्स मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 1942 में क्रिप्स मिशन तो आ गया, टू विन द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल फॉर द एफर्ट ऑफ ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी सेकेंड विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन के जो प्रयास थे उसके लिए वो भारतीयों का सपोर्ट और समर्थन चाह रहा था. अब उसके व्हाट वे द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य थे उसके? पहला था टू गेट द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द पीरियड ऑफ वॉर by the support of Indian leader, especially the leaders of Congress and Muslim League. पहला था कि भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से, यानी जो भारतीय नेताओं थे चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो मुस्लिम लीग के नेता हो, उनके सहयोग से जो युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था. यानी युद्ध ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वॉर, यानी युद्ध के समय जो सहयोग वो प्राप्त करना चाहते थे वो भारतीय नेताओं का सहयोग चाहते थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के नेता हों चाहे वो कांग्रेस के. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव, क्रिप्स वर्क टू कीप इंडिया लॉयल टू द ब्रिटिश वॉर, एफर्ट इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस ऑफ इलेक्शन एंड फुल सेल्फ गवर्नमेंट.
डोमिनेंट स्टेटस वंस द वॉर वॉज ओवर, यानी उनके कहने का मतलब है कि क्रिप्स जो है भारतीयों का सहयोग चाह रहे थे और उसके बदले में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया। क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में चुनाव कराने और औपनिवेशिक दर्जा, यानी उनको जो सेल्फ गवर्नमेंट का यानी खुद की सरकार बनाने का दर्जा प्रदान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय लीडर्स जो हैं वो उनको सहयोग करेंगे, उनका कोऑपरेट करेंगे, तो ब्रिटिशर जो है वो उनको जो है खुद की सरकार बनाने का मौका देगी और जो है चुनाव कराने का भी मौका देगी, या ऑन द डायरेक्टली आप इन कह सकते हैं कि उन्हें वो आज़ादी दे देगी। नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट? Cripps discussed the proposals which he had drafted himself with the Indian leaders and published them. Cripps discussed the proposal, अपने प्रस्ताव को उसने डिस्कस किया, which he had drafted himself with the Indian leaders and published them. Both the major parties rejected his proposals. Both the major parties, yani Muslim League and Congress Party, rejected his proposals, and they were also unacceptable to Churchill. Churchill was the prime minister of that time in 1942. No middle way was founded and the mission failed and Congress moved towards the Quit India movement. यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात की और प्रस्ताव पर चर्चा की, और इसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो असफल रहा और उसके बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। नाउ अब ये तो था क्रिप्स मिशन कि किस तरीके से क्रिप्स मिशन जो था वो हुआ। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था कि उसने पूरे उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेल्ड हो गया था भारत में, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, और जो है जब क्योंकि भारत में ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इन दोनों की चर्चा के बाद हम आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट, इसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, was a movement launched at the Bombay session of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1942 during World War II, demanding an end to British rule of India. यानी इसको हम अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस आंदोलन को आरंभ किया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश शुड quit India. He gave to the country the slogan do or die. He said, we shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the stability of our slavery. The very night he with other leaders were arrested. उन्होंने क्या आह्वान किया? उन्होंने आह्वान किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, कि ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ना होगा। उन्होंने प्रसिद्ध नारे जैसे करो या मरो का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम या तो अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे या अपने प्रयासों के थ्रू शहीद हो जाएंगे। हम अपने दासत्व स्थिति यानी गुलामी की जो हालत है, ये स्थिर हालत को अब हम आगे नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये भाषण देने के बाद गांधी जी को अलग जेल में डाल दिया गया अन्य नेताओं के साथ। फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स? The call for Quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the movement. उसके बाद जो परिणाम हुआ वो ये था कि भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, लोग जो है अपने से आंदोलन में जो है वो कूद पड़े। एंड देन people observed hartal, demonstrations, rallies with national songs and slogans. The movement was truly a mass movement which brought into its ambit thousands of people, including students, workers, peasants. यानी लोगों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। ये आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। सो लास्ट
It also saw the active participation of leaders along with the common people. इसमें लीडर्स ने भी पार्टिसिपेशन लिया, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मेनी, और बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें योगदान दिया, जैसे मतंगनी हाजरा, बंगाल की मतंगनी हाजरा, और कनकलता बारुआ इन असम की कनकलता बारुआ, और उड़ीसा की रामा देवी। ये इन क्रांतिकारियों ने, इन लीडर्स ने भी जो है वो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सो चिल्ड्रन, एंड ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बट फेल टू डू सो। ब्रिटिश ने जो है इसको दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए, और द गवर्नमेंट स्टक हार्ड एंड क्रश द मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वे शॉट डेड एंड 60,000 अरेस्टेड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट लास्ट पुट डाउन द रेबेलियन विद एन आयरन हैंड। और जो है बाद में गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो गई, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बाद में आके असफल हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द, ये असफल क्यों हुआ, इसकी क्या नीति, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हैवी हैंड सप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमन नीति के कारण, और बिकॉज ऑफ द वीक कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स, यानी लीडर्स में आपसी सहयोग बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था, और लैक ऑफ क्लीन कट प्रोग्राम्स, और जो है भारतीय नेताओं का या भारतीय लोगों में जो था वो जो है साफ और सही योजना की कमी थी। इस वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है असफल रहा, लेकिन जो है आंदोलन रुका नहीं। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर। इन आवर नेक्स्ट lecture we will discuss our next topic. So take care of yourself and goodbye.